everyone. Welcome to my YouTube channel CrackSat Turning Problems into Solutions. This is me Priyasha Das, and today in this video I'll be discussing about how to crack TISNET examination just in 24 days. Now I'll be discussing a complete 24 days study plan along with the important questions which can be coming up there, like where to get these questions from, how can you refer, what will you do, all these things depending upon the entire syllabus mentioned on the official website. But before I do that, I'll let you know about Unacademy's CAT 2022 scholarship test. Now, this is a completely free test, guys, with which you can actually gauge your levels before getting started for the next year preparation. Now, along with providing you a detailed test report and video solutions for all the questions, they are also giving you scholarships up to 100% on their subscriptions. Along with it, if you are among the lucky 18 winners, then you will also get Amazon vouchers worth rupees 10,000. The test is going to take place on 6th of February and 13th of February at 6 p.m. The link of which you will find in my description box. Now, if you use my code Priyasha10, then you will not only get this test absolutely free, but will also get some additional features of the Unacademy app. So make sure to enroll for this free test. And for the ones who are trying or planning to check out some plus courses on Unacademy, then do that within these 2 days, guys, because till Jan 31st, they are running a flat 20% discount on all the plus courses on Unacademy. And in addition to this, if you use my code Priyasha10, then you would be getting an additional instant 10% discount. That means a total of 30% discount on all the plus courses. So if you are planning to check out some courses, do check out the link in the description box, and let's get our video started. Hello everyone. So in this video we'll be talking about the strategy of cracking TISNET in 24 days. Now when I'm talking about this strategy, मेरे दिमाग में कुछ assumptions हैं and एक question भी है आप लोगों के लिए, the answer of which I want in the comment section. Now the first assumption which I have kept in my mind is either you have been preparing for this test no matter rigorously or slightly, बट आप कहीं ना कहीं इसके पैटर्न एंड थिंग्स के बारे में जानते हो. assumption number 1. assumption number 2, if you have given any of the other MBA examinations, कोई भी starting from CAT to ZAT, IIFT, कोई भी एग्जाम, ओके, माई कैट, अगर आपने किसी को भी दिया है, then also this is assumption number 2. अदरवाइज आई अज्यूम दैट आपने लास्ट ईयर इस एग्जाम को या तो अपेयर किया था या फिर you have just prepared for this examination, you know about this. All right, these are the assumptions, and the questions which I have is the strategy which I am going to give you here. Okay, you can do it all by yourself as well, and if you think that whatever strategy I am going to tell you, you need my assistance in this, like a small video talking about the topic which I have mentioned for day 1, for day 2, like this, then also please let me know in the comment section. I would be glad to make videos for the next 24 days coming up with a tiny crash course for TISNET as well. So both the ways you can let me know in the comment section. Now I'll start with day 1. Now before I get started, I'll let you know that ये सारे topics, the word choice, बेसिक अरिथमेटिक्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मैंने टिस्नेट के ऑफिशियल वेबसाइट से ली हैं. यानी कि जो उन्होंने कहा है कि जिस चैप्टर से वो क्वेश्चंस देंगे मैंने एग्जैक्टली उसी चैप्टर्स के नाम लिखे हैं. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग अफ्रेड कि इसके बाहर भी कुछ आएगा. मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा. एंड व्हेन आई से डे 1 में मैं ये पढ़ूंगी, इससे मेरा मतलब है कि एटलीस्ट मैं मिनिमम मैं 3 hours इसको डेडिकेट करूंगी. इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट 3 hours फॉर योर प्रिपरेशन, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ क्रैश कोर्स काइंड ऑफ अ मूड, I don't think that would be helpful for you. So if you think कि next 24 days तक आप 3 hours dedicate कर सकते हो every day, then you can definitely try out this mini crash course on TISNET. Okay. Now day 1 पे मैं start करने वाली हूँ word choices and sentence correction. Now इसमें किस तरह के questions आते हैं? The questions which get included in this is error detection type of questions, fill in the blanks type of questions, स्लाइटली एनालॉजी एंड टाइप क्वेश्चंस भी रहते हैं इसमें, एंड या एंटोनिम सिनोनिम्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है. तो आप बोलोगे सो मच ऑफ वास्ट सिलेबस,
how can we cover this in just a day, that too in 3 hours? Now listen, as I said, जो मैंने स्टार्टिंग के 3 assumptions बोले थे, उसमें से अगर एक भी assumption आप पर काम करता है, then you have a foundation layer already set up. आपको बस रिविजन की जरूरत है एंड रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है, और वो रेगुलर प्रैक्टिस कांस्टेंट 3 आवर्स के अटेंशन से आएगा. नाउ व्हाट आई कैन हेल्प यू इन दिस इज दैट अगर आप लोग चाहो, as if I'll see it in the next 24 hours, okay, after releasing this video in the next 24 hours, I'll check the comment section and I'll see if you guys really literally want me to make videos on this. I would surely come up with 50 most, you know, obvious questions which you can expect in the TISC paper. Depending upon TISC के previous year के papers, I would surely come up with those questions. अब उन क्वेश्चंस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 50 ऐसे क्वेश्चन सिलेक्टिवली लेकर आऊंगी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सेंटेंस करेक्शन एंड वर्ड चॉइस से, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एंड उसके साथ साथ आपको पेपर पैटर्न भी पता चल जाएगा कि ओके, इस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं. तो इससे आपको रिवीजन के साथ साथ एक अक्वेंटेंस मिलेगी इस पेपर पैटर्न से. ओके, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल. एंड प्रैक्टिस करने के लिए एडिशनली मैं आपको कुछ मटेरियल भी डेफिनेटली हेल्प करूंगी मटेरियल के साथ भी. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डे 2 में हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिक एरिथमेटिक का पार्ट 1 लेने वाले हैं. जैसे पार्ट 1 में मैं रेशियोज, प्रपोर्शंस, परसेंटेजेस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का कुछ बेसिक फंडास एंड रूल्स एंड थ्योरम्स बताऊंगी एंड उससे रिलेटेड कुछ 5-4 क्वेश्चंस कराऊंगी. एंड अगेन उस पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक डीपीपी काइंड ऑफ कह सकते हो आप, एक शीट प्रोवाइड करूंगी जिस पे आप प्रैक्टिस करके अपने आंसर्स रिकॉर्ड कर सकते हो. इससे अगेन द सेम थिंग, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारे फॉर्मूलाज पता चल जाएंगे एंड इस पे आप 2-3 क्वेश्चंस पर टॉपिक करके अपना इस टॉपिक पे एक बेसिक पकड़ ला सकते हो. नाउ यू हैव सीन दिस, मैंने यहाँ पे बेसिक वर्ड ऐड नहीं किया है, ये बेसिक वर्ड टिस्नेट के वेबसाइट पे है. दैट इक्वली मीन्स दैट वो खुद ही कहते हैं कि सब कुछ अप टू स्टैंडर्ड 10 की लेवल का आएगा, उससे डिफिकल्ट आएगा ही नहीं. एंड ट्रस्ट मी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टिस्नेट के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. एक तो क्वांटिटी भी कम होती है इन क्वेश्चंस की, और दूसरा है कि ये टफ नहीं होते हैं, ये सबको पता है, एवरीवन नोज दिस. तो आपको एडिशनली बहुत सारे एफर्ट्स देने की या बहुत सारा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये सॉल्व करने का तरीका क्या है. इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला देन नो वन कैन हेल्प यू इन दैट. डे 3 अगेन बेसिक अरिथमेटिक, बट इसमें हम सिर्फ टाइम एंड स्पीड एंड टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस लेंगे एंड अगर हमने कोई चैप्टर छोड़ दिया है तो हम उसे भी कवर अप कर लेंगे. डे 4 में पॉलिटिक्स इज अ जीके सेक्शन, और मैंने एक दिन फुल 1 डे डेडिकेट किया है जीके के लिए. एंड जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है वो तो 100% जानते हैं मैंने ऐसा क्यों किया है, एंड जिन्होंने नहीं भरा है आपके पास भी चांस है. आई थिंक 7th of February तक एप्लीकेशन फॉर्म्स खुले हैं. So it's a note for all of you, those who think that mathematics is difficult for them but learning GK is easy, please go for this examination, क्योंकि ये एक reputed firm है, best ROI, one of the best colleges in terms of ROI, and I can't tell you about it that literally किसी भी सेक्शन में कट ऑफ नहीं है एक्सेप्ट जीके. तो अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, सो इफ आई एम करेक्ट इट्स अराउंड 35% का कट ऑफ है, और एसटी एससी के लिए कोई कट ऑफ नहीं है बट ओबीसी के लिए स्लाइटली लोअर है. तो इस तरह से जीके में कट ऑफ है बट दूसरे सेक्शंस में नहीं है. तो अगर आपको लगता है कि आपका जीके सम अबाउट गुड इनफ है, या फिर आप नेक्स्ट 24 डेज अपने जीके के प्रिपरेशन के लिए डेडिकेट कर सकते हो, देन श्योरली गो फॉर दिस. सो पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे वीडियो बनाना होगा तो मैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड मोस्ट रेलिवेंट 50 या मोस्ट रेलिवेंट 100 क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर कर दूंगी. चाहे मैं उसके वीडियोस बना दूं, चाहे मैं उसका मटेरियल आपको एक वीडियो के थ्रू उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अपलोड कर दूं, कुछ भी हो जाए, I can help you only if you provide me a response in this video's comment section. So don't forget to comment below.
एंड जितने कमेंट्स होंगे उसके रिस्पॉन्स में मैं ही सोचूंगी कि इफ आई शुड कम अप विद दिस और नॉट. नाउ Day 6 analogies. So here analogies will be taken care of. इस analogies में हम English के analogies as well as logical reasoning के analogies को club करके पढ़ेंगे. बेसिक ज्योमेट्री में हम ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलैटरल्स डे 1 में कवर करेंगे, डे 7 में आई मीन, एंड डे 8 में हम सर्कल्स एंड पॉलीगन्स कवर करेंगे. नाउ डे 9 में हम सोशल स्टडीज से रिलेटेड 100 जीके एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें हमारी मैक्सिमम कवरेज हमें मिल जाएगी, जो कि हमें डेफिनेटली हेल्प करेगी. नाउ द नेक्स्ट इज डे 10, जिसमें हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस को इन डिटेल पढ़ेंगे. तो इसमें एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे समथिंग रिलेटेड टू रूट वर्ड्स. ओके, वो रूट वर्ड्स वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगी इस क्लास में. एंड आई विल आल्सो टेल यू ट्रिक्स अबाउट ओके वेरियस थिंग्स, लाइक वी कैन से एक सेंटेंस में एक वर्ड की मीनिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका ट्रिक भी. ये तो वीडियो में ही पॉसिबल होगा. सो इफ यू नीड अ वीडियो यू कैन लेट मी नो बिलो. Now, basic trigonometry means just the tabular form of trigonometry. Tabular form of trigonometry मतलब basic 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साइन कॉस थीटा के लिए, उनके रेसिप्रोकल्स के लिए. बस ये आपको पता होना चाहिए. कुछ नॉर्मल आइडेंटिटीज पता होने चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए. इस पे हम अगर मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर ले तो शायद वो हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन को पास करने के लिए इनफ होगा. मूविंग डाउन टू डे 12, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड 100 क्वेश्चंस करेंगे ऑन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, जिससे हमारी इस फील्ड में भी पकड़ स्ट्रांग हो जाएगी. मूविंग नेक्स्ट वील हैव ग्रामर. तो ग्रामर मैंने इसलिए डायरेक्टली लिख दिया है क्योंकि जो भी हमने ऊपर छोड़ा है इंग्लिश में हम उसे यहाँ पे पकड़ सकते हैं. पार्टिसिपल रिलेटेड, क्लोज टेस्ट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उसे यहाँ पे कवर अप कर लेंगे. नेक्स्ट बेसिक स्टैटिस्टिक्स. बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे तो वैसे मैंने एक रिवीजन वीडियो बना ही रखी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ज़ैट, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हो. और उसके साथ साथ हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. इन्वायरमेंट रिलेटेड जीके क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे एक्चुअली, स्टैटिक भी और करंट अफेयर्स भी, तो उन पे भी 100 या 200 क्वेश्चंस की कवरेज मैं आपको दे दूंगी इन्वायरमेंट रिलेटेड, ताकि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सॉलिड हो जाए इस पे ना. एक चीज याद रखिएगा, आप अगर एक वेरियस एक एरिया में भी रिसर्च करके याद कीजिएगा, सिर्फ आंसर याद नहीं कीजिएगा. जैसे आपने एक बुक से पढ़ा, जनरली मैंने देखा है अपने स्टूडेंट्स को ये करते हुए, दैट इफ आई गिव देम अ पर्टिकुलर थिंग दे विल जस्ट रिमेंबर इट एज इट इज. लेकिन मैंने कहा है कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू ये है, तो बस उन्होंने यही पढ़ लिया. अब वो कहाँ है, किसने बनाया, वो अगर आप एक बार गूगल कर लोगे ना, यू विल सी कि भले ही आपको ऐसे कोई पूछ दे आपको याद नहीं आएगा, बट अगर आप ऑप्शंस में देख लोगे तो आपको याद आ जाएगा. तो ये काफी रेलिवेंट है, जो कि इसलिए मैंने स्टैटिक जीके की सीरीज में भी इस तरह से एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है. सो मेक श्योर व्हेन यू आर स्टडिंग जीके यू आल्सो टेक द सेम मेथड. Now, coming next, we have verbal reasoning in day 16, a very essential part of reasoning related to English related reasoning. So, we'll cover it in day 16, day 17, number series, day 18, sports related GK, day 19 and 20 में मैं logical reasoning के various sections लूंगी. Logical reasoning के लिए हमारे पास questions आते हैं blood relation, directions, okay, cubes and dices, analogy, then we have classification, then we have coding, decoding, then we have picture based questions, series based questions, right? तो इन सभी तरह के क्वेश्चंस को इनपुट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस मैं 5 टॉपिक्स करके 2 डे में आपको उसके बेसिक्स बता दूंगी, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, आई कैन डू दिस. नाउ डे नंबर 21 पे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रखते हैं, क्योंकि एक तो वो एग्जाम से काफी क्लोज होगा, तो आप जो भी पढ़ोगे या प्रैक्टिस करोगे वो आपको एसेंशियली काम आएगा. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा एसेंशियल पार्ट है जो हर एग्जाम में होता है, सो you can actually go with it just with 1 day's practice. Now, day 22 में art and culture से related GK and current affair questions. Day 23 में data interpretation, ये ज्यादा नहीं आता, बट जितना भी आता है बेसिक नॉलेज बेस्ड आता है. ऑलरेडी मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस है जिसके लिंक मैं आपको बता दूंगी, बट
If you want some additional questions based on the exact pattern of this, then वो भी मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर सकती हूँ. एंड लास्ट इज डे 24 जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक्स है उसे कवर करेंगे. नाउ एज आई मेंशन, इस 24 डेज की प्लान्स को अगर आप अपने हिसाब से अपने रिसोर्सेज के साथ कवर करना चाहते हैं, then also it's a great idea. And if you need my assistance in this 24 days plan of TISNET, then please comment below and let me know, because your comment will be essential for me to decide whether I should go with this series or not. All right then, so if you like this video, please like this video, share it with all your friends, and of course if you're new to this channel, please subscribe to the channel as well. And I'll be meeting you in the upcoming videos. Until then, please take care and thanks for watching.